इसका क्या मतलब है, क्या जानना चाहते हो तुम? थिंक व्हाट हेल्प्ड मी गेट आउट ऑफ दैट लो फेज। आई वाज लाइक ये मैं कहाँ आ गई, मैं क्यों कर रही हूँ। जैसे जैसे टाइम जा रहा है मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। Hi everyone, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another video. Welcome to the first video of 2025. It's the first time that I'm sitting down to shoot a YouTube video in this year. Last जो मैंने shoot करा था that was the New Year vlog itself. I hope आप वो देख चुके हो अब तक. If not, here's a thumbnail. जाओ जाकर check कर लो. And coming to today's video, it's been so long since I've had a heart-to-heart with you guys. Today is January 14th and on January 7th, my YouTube channel completed 3 whole years. That was like a huge deal for me, even though I did not do much to celebrate. I just ordered a cheesecake and I cut that with my roommate and that was my celebration. On that day itself, I decided that I will do a heart-to-heart video where I will just share some feelings and I'll also do a Q&A. 3 साल से मैं ये कर रही हूँ. अगर आप starting से हो तो 3 साल से आप मुझे देख रहे हो. I wanted to deepen that connection that I hope that I've built. I left a poll on Instagram that I'm sitting to shoot after long. तो आपको अगर कोई भी questions वगैरह मुझसे पूछना हो तो you can ask. I did get a few questions that I'm going to answer. Once we're done with the questions, after that I'll have my small little heart-to-heart. So if you want to know how this video turns out, please keep on watching. But before that, if you're seeing this face for the very first time, I am Shivani and I make beauty, fashion and lifestyle videos here on YouTube. Make sure to subscribe to my channel if you haven't already. I'm sure I'll have a great time here. Hit that bell icon as well so that every time I upload a video, you get notified. And now without any further ado, let's get into the video. Before starting the video, if you like the makeup right here, it's the new Latina makeup trend that's going on. Latina or Latina, whatever it is, it's the Latina makeup trend that's going on and that's what I did. And मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली ये मेकअप एंड मैंने इसका ट्यूटोरियल भी शूट किया है, वो भी या तो आने वाला होगा या तो आ चुका होगा, तो मेक श्योर कि आप वो भी देखना इफ यू लाइक दिस मेकअप. Coming back to today's video, पहला क्वेश्चन न्यू ईयर से रिलेटेड ले लेते हैं. What are your न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड योर ऑल टाइम फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स? दोनों क्वेश्चन में कोई कनेक्शन नहीं है, बट आई विल आंसर बोथ. सो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग न्यू ईयर का देखा है तो यू नो व्हाट ऑल आर माय न्यू ईयर रेजोल्यूशंस. नॉट रेजोल्यूशंस बट व्हाट आई वांट टू डू इन 2025. मैंने विजन बोर्ड अपना पूरा बनाया, उसमें पूरा डिस्क्राइब किया कि मेरे क्या क्या गोल्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि कुछ हद तक अचीव हो जाए, इफ नॉट फुल्ली. रेजोल्यूशन के टर्म्स में द मेन थिंग दैट आई वांट टू डू इज गेट फिट, गेट माय बॉडी बैक इन शेप. आई वाज इन अ वेरी गुड शेप बिफोर स्टार्टिंग MBA. टचवुड, आई हैव ऑलवेज बीन इन अ गुड शेप एंड लव्ड हाउ आई लुक्ड. बट MBA में जाते ही, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर एज वेल, MBA में जाते ही आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एंड अब वो मेरे फेस पर, मेरी बॉडी पर दिखता है. सो आई वांट टू लूज दैट. That could be one of my biggest resolutions. And apart from that I just want to incorporate more discipline in my life. अभी भी मुझे ये शूट वाइंड अप करके फ्लैट जाना है, लेकिन मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ शूट करने में. I don't know why. मैं जितनी मर्जी प्लानिंग कर लूँ मेरा काम मिसमैनेज्ड हो ही जाता है. So I want to become a little more managed. MBA स्टूडेंट हूँ तो इतनी मैनेजमेंट तो आनी चाहिए मुझे. So ये 2 रेजोल्यूशंस बोल सकते हैं. And my all time favorite skincare product would be, and I don't think I have any all-time favorite product because मेरे को जो collaborations में product आते रहते हैं मैं वो use करती रहती हूँ. So my favorites keep on switching. Right now I'm loving the Plum Oats and Ceramides वाला moisturizer. Amazing if you have dry skin, especially in winters. It's very soothing. So that's one moisturizer that I love. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मल सीरियस सा क्वेश्चन है. व्हाट्स द बेस्ट टिप फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड? एंड आई फील दैट नाउ मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, और मे बी आई एम. ये सर्दी में ये वीडियो शूट करना बहुत मोटिवेशन लगती है ये करने में. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है मेरी थोड़ी सी मोटिवेशन कम हो गई है, but I'm working on it. It's not a good thing. I am working on it and it's pretty evident also. मैं जब बिल्कुल लो हो गई थी मैंने वो भी बताया था, अब मैं रीगेन कर रही हूँ फोकस में, मैंने बताया है. So it's all out in the open. And I think what helped me get out of that low phase, it was all the work that I have already put in. इतनी आगे मैं आ चुकी हूँ. I know अभी बहुत जर्नी बाकी है, लेकिन एक टाइम पर ये सब भी मेरे लिए सपना होता था कि मुझे कोलैबोरेशंस मिल रही हैं, घर वालों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, मैं कभी भी शूट कर सकती हूँ. मैंने अपने पैसों से रिंग लाइट खरीदी है. 21 ईयर ओल्ड शिवानी के लिए वो एक अनरियलिस्टिक ड्रीम था. शी हैज फॉट वेरी हार्ड. तो वो सब आई कैन नॉट जस्ट थ्रो इट अवे. तो आई थिंक द वर्क दैट यू हैव पुट इन टिल नाउ, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए यू शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड. आई होप आई मेड सेंस एंड यू अंडरस्टूड माई पॉइंट. काफी डीप हो गया वो क्वेश्चन, थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन ले लेते हैं.
हाउ हैज MBA इम्पैक्टेड योर पर्सनल लाइफ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप? लाइक ऐसा लग रहा है मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ और HR ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है. So yes, MBA has impacted a lot of my personal life. MBA में आपको इतने लोग मिलते हैं, लाइक 2 साल के लिए आप जिन लोगों के साथ होते हो वो सब आपकी फैमिली बन जाता है, बिकॉज यू आर देयर विद ईच अदर इन ऑल द अप्स एंड डाउन्स. MBA is a roller coaster journey. Literally ऐसे जाती है, and you need good people to take care of you, जिनका आप ध्यान रखो. I have made a lot of friends. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मेरी कॉलेज से आगे बहुत टाइम तक दोस्ती रहने वाली है. And I've made one best friend जिसका मैं बहुत सर खाती हूँ. MBA आपको इतना बिजी रखती है कि जो MBA के अलावा आपकी सोशल लाइफ होती है वो थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है. मेरे घर के दोस्त नाराज हो जाते हैं कि तुम मिलती नहीं है. मैं घर वालों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती. अब सेकेंड ईयर में थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, बट फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल नहीं हो पाता था. तो थोड़ा सा बाकी लाइफ से थोड़ा सा कट जाओगे, स्पेशली फर्स्ट ईयर में. MBA से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हैं. सो द नेक्स्ट इज हाउ वाज योर MBA जर्नी? यार मेरी MBA जर्नी तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ देखी है. जितना पॉसिबल हुआ मैं दिखा पाई. कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी है जो मैंने पब्लिकली नहीं दिखाए, बिकॉज बहुत प्रेशर आ जाता है यार. उसको जो हो रहा है साथ के साथ शूट करो, एडिट करो, डालो. मैं वो मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाती. तो कुछ चीज़ें मैंने सिर्फ अपने एंजॉय करने के लिए बचा के रखी है. चीज़ें मैंने आपको दिखाई है. सो ऑल इन ऑल इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी. एंड जब मैंने स्टार्ट करी थी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी. फर्स्ट टर्म में था लाइक मैं कहाँ आ गई, मैं क्यों कर रही हूँ, इतना फालतू का एटीट्यूड है लोगों में यहाँ पर. नॉनसेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते थे फर्स्ट टर्म में. बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा हर चीज़ की सेंस समझ आने लगी, हर चीज़ हैंडल करने की हैबिट होने लगी. एंड आई वॉज वेरी इंटिमिडेटेड. मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके आगे, बिकॉज दे वर सो इंटेलिजेंट. विद टाइम आई गॉट बेटर एंड देन देयर वाज अ टाइम दैट आई फेल इन लव विद दिस जर्नी. एंड अब बस 3 महीने बचे हैं. एंड आई एम लाइक क्यों खत्म हो रही? 3 महीने 2.5 महीने बचे हैं. लाइक क्यों खत्म हो रहा है भाई ये चैप्टर? सो विद अ हेवी हार्ट आई विल क्लोज दिस चैप्टर. बट इससे ज़्यादा मैं इस बारे में और बात नहीं करूँगी. अभी मेरे पास 2.5 महीने और है एंजॉय करने को. ब्यूटी रिलेटेड क्वेश्चंस हियर. हेयर केयर एंड विंटर स्किन केयर रूटीन. बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द सेम पर्सन, सो आई विल आंसर. विंटर स्किन केयर रूटीन में एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जो खा रहे हो पी रहे हो उस पर ध्यान रखो. दैट हाइड्रेट योर सेल्फ अ लॉट. सर्दियों में पानी पीना भूल जाते हैं बिल्कुल, तो पानी खूब पियो. एंड जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दैट गुड स्टफ जो कि मैं भी खुद बहुत कम लेती हूँ. बट आंवला, हल्दी वगैरह ये सब का एक ऐसे इस सब की ड्रिंक बना कर लो. ड्रिंक योर स्किन केयर. एंड नाउ कमिंग टू प्रोडक्ट्स. विंटर्स में तो सबकी स्किन ही ड्राई हो जाती है, तो नेवर एवर स्किप अ गुड मॉइस्चराइजर. आई थिंक सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर विद SPF वुड बी सफिशिएंट अगर आप ज़्यादा स्किन केयर नहीं करते हो. सो या फेस वॉश करो, देन मॉइस्चराइजर एंड उसके ऊपर सनस्क्रीन एंड लिप बाम. ये तो आपका बेसिक चाहे समर हो चाहे विंटर हो रहेगा ही. बस उनके मॉइस्चर की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो जो ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग और हैवी चीज़ें होती है वो विंटर्स में यूज़ करो. एंड हेयर केयर के लिए माई फेवरेट थिंग टू डू इज एलोवेरा जेल में कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल ये सब मिक्स करके उसका एक हेयर मास्क बनाकर लगाती हूँ मैं. बट समर्स में ही वो ज़्यादा हो पाता है. एलोवेरा जेल विंटर्स में तो माई स्कैल्प कांट टेक इट. तो विंटर्स में मैं एलोवेरा जेल हटा के बाकी तरह के ऑयल्स ही यूज़ कर लेती हूँ. एंड दैट टू वेरी रेयरली, लाइक महीने में 1-2 बार मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ. वन न्यू थिंग दैट इट्स नॉट रियली अ न्यू थिंग, मैं बचपन में करती थी एंड नाउ आई हैव गॉन बैक टू इट दिस विंटर्स एंड इट इज सुपर डुपर इफेक्टिव फॉर योर हेयर, स्पेशली फॉर डैंड्रफ. इज अप्लाइंग मस्टर्ड ऑयल ऑन योर हेयर. मस्टर्ड ऑयल में ऐसे 2-3 बार ऐसे नींबू निचोड़ दो एंड उसको अपने स्कैल्प पर लगाओ. उसमें थोड़ा सा आप आमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हो. वॉश इट ऑफ. 2-3 बार में आपका डैंड्रफ ठीक हो जाएगा एंड कम होना शुरू हो जाएगा बेसिकली. सो दैट nice to know that somebody has asked how have I been. I think I've been pretty good and बस थोड़ा सा दिमाग में यही चलता रहता है कि यार MBA खत्म होने वाली है. I'm not ready to end this chapter. उसके अलावा life is good. टचवुड अभी हेल्थ ठीक चल रही है. प्लेसमेंट भी मेरी हो चुकी है एंड फैमिली के साथ भी सब सही है, फ्रेंड्स के साथ भी सब सही है. पर्सनल लाइफ में भी ऑनेस्टली अच्छा चल रहा है. अगर कुछ बुरा चल भी रहा होता है, ऐसा नहीं कि मैं छुपा रही हूँ, कुछ बुरा चल भी रहा होता तो चाहे ऊपर से ही सही बट बता ही देती. लेकिन सही चल रहा है अभी टचवुड. वन फैक्ट अबाउट योर सेल्फ दैट योर ऑडियंस डजंट नो. मेरे बारे में ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने आज तक व्लॉग में बताई नहीं है. मेरी लेट होने की आदत सबको पता है. मैं बहुत बातें करती हूँ सबको पता है. मेरा करियर हिस्ट्री सबको पता है. आई थिंक वन फैक्ट दैट द ऑडियंस डजंट नो अबाउट मी वुड बी दैट द पर्सन दैट यू सीइंग टुडे
I was not at all like this when I was in school. I was the complete opposite. मतलब क्रिएटिविटी का सी भी नहीं आता था मुझे. मैं कैमरा से दूर भागती थी. मैं सेल्फीज तक नहीं लेती थी. I remember saying no to my friend कि मुझे सेल्फी नहीं खिंचवानी, मेरा फेस अच्छा नहीं आता. Like, I was a camera shy person to this extent. उस चीज को अगर साइड में रख दो तो क्रिएटिविटी के टर्म्स में आई नेवर थॉट कि मेरा कभी ये करने का मन भी करेगा. मैं स्टेज पर नहीं चढ़ती थी. मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट नहीं लेती थी. डांस का मुझे कोई शौक नहीं था. बिल्कुल डांस नहीं आता था. मेकअप तो बहुत ही नाम मात्र मेकअप करती थी मैं और मेरी मम्मा आज भी बात करते थे. स्कूल टाइम में कोई आइडिया नहीं था कि ये शिवानी निकल के आएगी बड़े होके. तो बोलते हैं ना कि आपको कुछ चीजें लाइफ में गलत हो जाने दो तो ताकि उससे आपको ये पता लग जाता है कि क्या सही है. जब मैं सीए में ऐसे एक तरह से फंसी हुई थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है. मेरी असली क्रिएटिविटी लोएस्ट पे जाके बाहर निकल के आई, जो कि स्कूल टाइम में कभी आई नहीं थी. आई वाज ऑलवेज अ गुड किड. आई ऑलवेज स्कोर्ड गुड मार्क्स एंड मुझे ऐसा लगता था कि करियर सेट होने में मुझे कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं क्योंकि आई ऑलवेज बीन अ गुड किड. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था वही हो रहा है मेरे साथ. दिस इज समथिंग दैट द ऑडियंस माइट नॉट नो अबाउट मी. आई वाज नॉट दिस फ्रॉम द स्टार्ट. I've saved the best question for the last since I asked you guys कि कोई टॉपिक छोड़ दो जिसके बारे में आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ. तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया एंड दैट इज बॉयफ्रेंड टॉपिक. भाई इसका क्या मतलब है, क्या जानना चाहते हो तुम? वैसे बताओ कि व्हाट इज बॉयफ्रेंड टॉपिक. कुछ क्वेश्चन होता है. आई अंडरस्टैंड मैंने टॉपिक बोला था बट दिस इज सो वेग. एनीवे I'm assuming that you want me to discuss about the boyfriend topic and not actually know कि मेरा क्या स्टेटस है इस चीज में. So I will discuss the boyfriend topic. आजकल मार्केट में बहुत कूड़ा कबाड़ा फैला हुआ है in terms of talking stage, situationship. चलो talking stage तो करनी पड़ती है but in the name of situationships and casual बहुत कूड़ा कबाड़ा चल रहा है आजकल. I'm nobody to control your life but I'm just giving a suggestion that unless you are in a real thing and it is worth it, please don't get caught up in situationships and all because they take up so much of your time, so much anxiety, and if you are the one who is waiting for the situationship to turn into a relationship is not worth it कि आप किसी person को वो authority दो ना आपको पूरी तरह अपनी life में ले ना जाने दे. I don't think anybody deserves that. So please save yourself from that anxiety, that stress, and focus on either being in a real thing or just focus on yourself, enjoy yourself. Life is very big and you. And नैना ने बोला था ना मैंने इंतजार भी नहीं किया. And Aditi also with time realized that अभी के साथ कुछ नहीं होने वाला. So she simply moved on. I know it's easier said than done, but you will find your Taran और आपका बनी को और आपके बनी को अगर वापस आना होगा तो आ जाएगा. But please just don't get into situations if it's not at all worth it. बाकी that was my opinion. No way am I forcing you आपको करना है करो. आपकी लाइफ है, enjoy. That was some unsolicited ज्ञान. Not really unsolicited. आपने पूछा था मुझसे, so that was that. Now moving on to the heart to heart part. मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया. So I'll keep this short and crisp. Is that I've completed 3 whole years and at one point I didn't even know that मैं ये कभी कर भी पाऊंगी कि नहीं क्योंकि मैं बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ कि के बाद वाला स्ट्रगल एक अलग चीज़ होती है. वो तो मैं अभी भी फेस कर ही रही हूँ बट स्टार्ट करने से पहले भी इट वॉज अ होल अनदर स्ट्रगल फॉर मी कंसिडरिंग. जैसे अभी मैंने बोला कि मेरी वो पर्सनैलिटी ही नहीं थी. लाइक इवन व्हेन आई इनकलकेटेड दिस ड्रीम आई डिड नॉट नो दैट आई हैव इट इन मी टू एक्चुअली डू इट बिकॉज आई वॉज नॉट दिस पर्सन. आई हैड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ टू बिकम दिस पर्सन. दैट्स वन. 2, I did not have that kind of family support and I was stuck in a career anxiety. जो मैं कर रही थी वो पसंद नहीं आ रहा था. इसके अलावा और क्या करने ऐसे सॉलिड जैसे मैं अभी MBA कर रही हूँ. दैट इज समथिंग सॉलिड. ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास उस टाइम पर बोलने को कि हाँ मैं ये भी कर रही हूँ तो आप मुझे YouTube साथ साथ करने दो. इसलिए वो टाइम बहुत मुश्किल था. एंड आई रिमेंबर जब मेरी CA चल रही थी तब एक बार सुबह 4-5 बजे के आसपास मैंने ऐसे एक पेपर पे लिखा था. वीडियो आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे थे तो मैंने उस पर ऊपर लिखा था इफ वन डे आई गैदर द करेज टू एक्चुअली स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल दिस इज हाउ द वीडियोज विल गो. एंड उसके नीचे मैंने 50 आइडियाज एक साथ लिख दिए थे. सो दैट वॉज मी. If one day I will be able to gather the courage and today I'm doing it and I'm doing it since 3 years. I don't know what the future has in store for me and जैसे जैसे टाइम जा रहा है मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि ये एफर्ट मेरा बिल्कुल वेस्ट ना हो जाए 3 साल का. क्योंकि जितने भी मैंने कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं 3-3.5 साल तक they have reached that established stage
एंड मैं नहीं पहुंच पाई अब तक वहां, तो देखते हैं कहाँ तक जाती है जर्नी। बट आई एम नॉट गिविंग अप। मेरा मन खुश रहता है करते हुए, मैं जब नहीं करती तब मैं अलग ही परेशान रहती हूँ। मैं करती हूँ तो मेरा दिल सेटिस्फाइड रहता है, तो मैं करती जाऊंगी। एंड अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन मेरा भी ब्रेक थ्रू आएगा। होपफुली 2025 विल बी माई ब्रेक थ्रू ईयर। होपफुली वंस आई गेट दैट ब्रेक थ्रू आई विल रीच दैट मार्क ऑफ 100K, 200K and all that big numbers that I'm waiting for. If you are somebody who is watching me from the start and still not bored of me, thank you so much for sticking by. 2000 people are still a lot of people. Really glad about that. Thank you so much for your support. And for somebody who just randomly stumbled upon my channel and started watching it and are still here watching this video, thank you so much. That was my dream, so that means a lot. Let's just promise each other to work really hard towards our goals, and someday maybe we'll reach where we want to be. With that, I think I should end this video right now because I've been speaking since so long and edit karte meri bang bajegi. It's time to end this video right now. If you watched till here, thank you so much for watching. Make sure to like this video, share this with your friends and family, and I hope that we were able to connect more after this video. कुछ भी आपको मुझसे share करना हो, either DM me or leave it in the comments. I'll be happy to read that. And with that, I'll see you guys in my next video. Bye bye.